two tweets and a suo moto criminal contempt proceedings initiated by the Supreme Court against a senior advocate of the Supreme Court, also a very popular RTI activist, that is Prashant Bhushan, has caused turbulence in the legal circle and media in these days. In this video today, we are gonna discuss about the entire case of Prashant Bhushan's criminal contempt proceedings, about the contempt of court, need of contempt of court, its relevance, issues with this act of 1971, and the way forward. So before coming on to a core part, that is the contempt of court, let us briefly discuss the case of Prashant Bhushan's criminal contempt. तो बेसिकली जून 27 और 29 को दो ट्वीट्स किए गए बाय प्रशांत भूषण. इन द फर्स्ट ट्वीट ही टारगेट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु वाज सीन सिटिंग ऑन अ बाइक, that is Harley Davidson, owned by a BJP leader in Nagpur during the lockdown period. तो प्रशांत भूषण ने उस ट्वीट में बोला कि CGI is riding a bike without a mask or a helmet when Supreme Court is in lockdown. And in his second tweet, Prashant Bhushan directly attacks the Supreme Court. He says that the role of Supreme Court, if looked by historians in future, will definitely be that of destroying the democracy in these past 6 years, in particular by 4 CJIs और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो वो 4 CJIs को टारगेट कर रहे हैं, दे आर बेसिकली जस्टिस खेहर, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई एंड द करंट CJI दैट इज जस्टिस बोबड़े. ये दो ट्वीट्स जब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में आए इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू इनिशिएट suo moto proceedings of criminal contempt against प्रशांत भूषण. 14th of August को सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया एंड इट फाउंड प्रशांत भूषण गिल्टी ऑफ criminal contempt for his 2 tweets. And after this decision of Supreme Court, काफी ज्यादा criticism हुआ for convicting Prashant Bhushan for his 2 tweets under Contempt of Court Act 1971 for criminal contempt. So near around 3,000 retired bureaucrats, judges, lawyers, generalists and near about 1800 members of bar ने openly criticize किया और protest किया इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को. Then on 20th of August, Supreme Court, when it was to deliver the punishment for the order of 14th of August, it said that we again ask Prashant Bhushan to retract his statements or reconsider his statements in 2 to 3 days. उसके बाद 24th of August को प्रशांत भूषण ने कहा कि if I retract my statements, then it would amount to contempt of my own conscience and also the contempt of my belief on the institution, that is Supreme Court. So प्रशांत भूषण ने retract करने से मना कर दिया एंड 25th of August को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट रिजर्व कर लिया. So this was a briefing about the Prashant Bhushan's criminal contempt case. अब हम बात करते हैं contempt of court की कि इसकी नीड क्या है, रिलेवेंस क्या है, इसमें इश्यूज क्या है और इसका वे फॉरवर्ड क्या है. तो contempt of court basically means to show disrespect or be disobedient towards the judiciary. तो अगर कोई भी डिसरिस्पेक्ट शो करता है या कोर्ट के ऑर्डर्स, डिक्री, डायरेक्शंस, जजमेंट को मानने से मना कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स डिराइव कहां से होती हैं अगर हम देखना चाहें, देन वी विल सी दैट द पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम 2 sources. First is Constitution of India and second is the statutory legislation. So under Constitution of India there are 2 articles. First is Article 129 that gives power to the Supreme Court to punish for its contempt, and second is Article 215 which gives power to high courts to punish for its contempt. अब अगर हम बात करें स्टेटोरी लेजिस्लेशन की, देन पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट, प्रोसीजर्स ऑफ कंटेम्प्ट and the definition of contempt, all these things are mentioned under the Contempt of Court Act of 1971. इस एक्ट में
क्लियर मेंशन है अबाउट द टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट, फर्स्ट इज सिविल कंटेम्प्ट एंड सेकंड इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का सिंपल सा मतलब है नॉन कंप्लायंस। अगर कोर्ट की किसी भी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर का नॉन कंप्लायंस होता है या उसका विलफुल डिसओबीडियंस होता है, देन court can initiate contempt proceedings against that particular individual, authority or organization। अगर हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात करें तो इसके अंडर में बेसिकली तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट इज स्कैंडलाइजेशन ऑफ द कोर्ट, सेकेंड इज इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड थर्ड इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये तीन चीजों में दो चीजें तो काफी हद तक क्लियर हैं, लाइक सिविल कंटेम्प्ट, दैट इज इंटरफेरेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, बट स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट, दैट इज एन आउटरेज ऑफ मोरालिटी ऑफ द जुडिशरी। तो ये काफी वेग टर्म है, दैट इज स्कैंडलाइजेशन। ये बहुत ही वेग है, ये डिफाइंड भी नहीं है एंड दस इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लॉन्ग बाय लीगल ल्यूमिनरीज। और जो प्रशांत भूषण का केस है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ही है अंडर द स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट। उसको हम और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट, फर्स्ट इज सिविल एंड सेकेंड इज क्रिमिनल। तो हमने कंटेम्प्ट की डेफिनेशन देख ली, टाइप्स देख लिए। नाउ वी शैल बी लुकिंग अपॉन सम ऑफ द निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस एक्ट, सच एज नो प्राइवेट पर्सन कैन फाइल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है तो उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आप कोर्ट गए, आपने पिटीशन फाइल करी और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई। तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स या तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो करे, दैट इज सुप्रीम कोर्ट खुद केस को देखे और इनिशिएट कर दे प्रोसीडिंग्स ऑफ कंटेम्प्ट, और you have to get the approval of Attorney General of India. So this is the basic procedure for the contempt of court. Next is that no contempt proceedings can be taken which are more than 1 year old. तो अगर कोई भी केस आना है for the contempt, then it should have been initiated in 1 year from the commission of an offense. Next important thing in the contempt of court is कि अगर कोई criticism किसी particular judge का हो रहा है in his individual capacity, then contempt proceedings cannot be initiated. In this case, the proceedings can be initiated of defamation under section 499 of the Indian Penal Code. तो अगर किसी जज को आप क्रिटिसाइज करते हैं या कोई और क्रिटिसाइज करता है तो उस केस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं अप्लाई होता है। So this was some of the basic information with respect to the Contempt of Court Act 1971. इस एक्ट में कुछ डिफेंसेस भी मेंशन्ड है, डिफेंसेस अगेंस्ट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। दीज डिफेंसेस आर लाइक innocent publication, fair and accurate report of judicial proceedings, fair criticism, justification by truth and defamation of judge पर्सनली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नेचुरली एक्ट करते हैं एज डिफेंसेस अगेंस्ट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। इसमें कुछ डिफेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, लाइक फेयर क्रिटिसिज्म, जिसको अरुंधति रॉय केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, एंड इट सेड दैट एज लॉन्ग एज द क्रिटिसिज्म इज फेयर, नो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ। जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ को इंक्लूड किया गया था थ्रू एन अमेंडमेंट इन 2006। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 को अमेंड किया गया 2006 में, और उसमें ये एक डिफेंस ऐड किया गया, दैट इज जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ। तो ट्रुथ ऑटोमेटिकली एक डिफेंस बन जाता है अगेंस्ट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस इज द डिफेमेशन ऑफ जज पर्सनली। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी जज को आप क्रिटिसाइज करते हैं देन इट becomes a defamation case and not a contempt case. Now let us talk about the case of प्रशांत भूषण, कि प्रशांत भूषण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीड किया और कैसे उसने अपना जजमेंट दिया। So the first thing that Supreme Court observed in the Prashant Bhushan case is that Prashant Bhushan's tweets caused disrespect to the judiciary or the Supreme Court।
क्योंकि उन्होंने मेंशन करा है स्पेसिफिकली अबाउट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन लास्ट 6 years हैज डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी. सो दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट and scandalization of court in a manner according to the Supreme Court. प्रशांत भूषण के ऊपर जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई वो बेसिकली स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट की हुई बिकॉज ऑफ दिस मैटर मेंशन्ड इन हिज ट्वीट. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करी और कहा, that was with respect to the Supreme Court being non-functional during the lockdown period. लॉकडाउन के समय एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने मोर देन 12,000 मैटर्स देखे थे इन इट्स 879 सिटिंग्स, और इनमें से कुछ मैटर्स में प्रशांत भूषण भी अपीयर हुए थे. हाउ कम प्रशांत भूषण पॉइंट आउट फिंगर एट सुप्रीम कोर्ट एंड से दैट सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट बीन फंक्शनिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड हैज नॉट बीन गिविंग अटेंशन टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. So these things mentioned by the Prashant Bhushan in his tweets had potential to shake public confidence in the Indian judiciary according to the Supreme Court. इसीलिए Supreme Court ने in the larger public interest ये decide किया that this criticism of Prashant Bhushan cannot be called as fair criticism because it has actually shaken the public confidence. And also his tweets have caused disrespect the administration of justice. So for all these things, Supreme Court found him guilty of criminal contempt under Contempt of Court Act of 1971. अब हम बात करते हैं कि इस जजमेंट की क्रिटिसिज्म क्यों हुई, कि क्यों 3,000 लीगल ल्यूमिनरीज इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर जजेस, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ये सब ओपन में आके सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करने लगे एंड दे आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट टू करेक्ट इट्स जजमेंट बाय कॉलिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ टाइमली मैनर. तो जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म यहाँ पे आता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी अजम्पशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अजम्पशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से यहाँ पे बेसिकली ये मतलब है दैट इज द मैनर इन विच सुप्रीम कोर्ट टुक दिस केस, इट heard this case and it decided on this case. तो ये जो तीन चीजें हुई, that is taking this case and hearing this case and deciding it within 30 days, ये basically एक extraordinary assumption था. because हमने देखा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अगर इनिशिएट होनी है तो वो या तो सुओ मोटो होंगी या विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ AGI होंगी, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. बट इस केस में ऐसा हुआ कि सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने से पहले ये कंटेम्प्ट का केस फाइल किया था बाय अ लॉयर महक महेश्वरी. सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली एक्सेप्टेड दैट पेटिशन विदाउट इट बीइंग अप्रूव्ड बाय द AGI. तो पहला क्रिटिसिज्म तो यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन एक्सेप्ट कैसे करी जबकि उस पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल था ही नहीं. देन लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करी. तो जो क्रिटिसिज्म है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट पिटीशन दैट इट टुक फ्रॉम द लॉयर महक महेश्वरी. एंड सेकंड क्रिटिसिज्म है कि ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 30 दिनों में सेटल कर दिया जबकि इतने इंपॉर्टेंट केसेस ऑलरेडी लिस्टेड हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जिनकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है इन अ टाइमली मैनर. एंड फॉर दिस केस सुप्रीम कोर्ट शोड सो मच ऑफ हेस्ट एंड डिसाइडेड इट इन जस्ट 30 days. तो अगर हम जम्मू कश्मीर के इंटरनेट राइट्स के केस के बारे में बात करें या अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइक दैट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसमें मोर देन 140 पिटीशंस ऑलरेडी फाइल्ड है सुप्रीम कोर्ट में, ये सारे केसेस साइडलाइन हो जाते हैं एंड दिस केस बिकम्स द प्रायोरिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट. तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का लीगल ल्यूमिनरीज ने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म किया है. नेक्स्ट पॉइंट मेंशन्ड इन द क्रिटिसिज्म सेक्शन कम्स फ्रॉम फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज दैट इज जस्टिस कुरियन जोसेफ, जो कि ये बोलते हैं दैट दिस मैटर शुड हैव बीन हर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. तो अभी जो डिसीजन दिया है दैट हैज बीन गिवन बाय अ 3 जज बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो मिनिमम कोरम होता है वो 5 जजेस का होता है. बिकॉज दिस केस नॉट ओनली इन्वॉल्व द contempt of court proceedings but it went beyond that.
इसमें काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज मेंशन थे, तो इस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हियर करना था, ना कि एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट की बेंच को. So this is the argument of a former Supreme Court judge. And the overall criticism is about the behavior of Supreme Court, जिसमें ये कहा जा रहा है कि Supreme Court acted like a executive court of erstwhile socialist countries. Socialist countries में जैसे executive courts रन किया करते थे, कुछ उस तरीके से Supreme Court ने इस केस को डील किया, and it does has resulted into judicial violence. So this was everything about the Prashant Bhushan's case and the decision given by the Supreme Court. Now let us go back to the contempt of court and look at its relevance. तो अगर हम contempt of court के relevance की बात करें तो first point आता है about the majesty and dignity of judiciary. Judiciary पे public का trust होना is of utmost importance, और उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है दैट इज द डिग्निटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन. अगर एक इंस्टीट्यूशन के पास मेजेस्टी नहीं होगी, डिग्निटी नहीं होगी, देन ट्रस्ट ऑफ पब्लिक कैन नॉट बी एंश्योर्ड on that institution. So for this contempt of court is necessary, because contempt of court help करता है judges को to work without any favor, fear and affection. तो ये basically ensure करता है impartial character of judiciary. अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप हटा देंगे तो हो सकता है लोग ओपनली क्रिटिसाइज करना कोर्ट को चालू कर दें, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैम्पर हो जाए, एंड बिकॉज ऑफ विच ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर कैन कोलैप्स. क्योंकि अगर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा जुडिशरी से तो लोग लॉ एंड ऑर्डर को अपने ही हाथ में ले लेंगे, एंड दैट विल मेक लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स. तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जुडिशरी को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मोटिवेटेड अटैक्स एंड अनवारंटेड क्रिटिसिज्म्स, जिसके कारण जुडिशरी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपना रोल प्ले कर पाती है, और जो ट्रस्ट है पब्लिक का जुडिशरी पे उसको भी इंश्योर कर पाती है. बिकॉज B.R. अंबेडकर ने भी कहा था दैट crux of the constitution is judiciary, because it is judiciary that ensures proper functioning of legislature and executive. तो इन दोनों पे चेक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को एक स्पेशल रोल प्ले करना पड़ता है, which is ensured by this contempt of court. ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण contempt of court जरूरी है, relevant है for the judiciary to function effectively, fairly, impartially and efficiently. Now let us talk about some of the limitations of the contempt of court. तो limitations को जब हम list out करने जाएंगे, so first limitation would be of conflicting constitutional articles or principles. जहां पे आर्टिकल 19(1) प्रोवाइड करती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया, वहीं पे आर्टिकल 129 बोलता है that Supreme Court has powers to punish for its contempt. So these two articles basically are contradictory to each other, and there is need to find balance between them, because Article 19 cannot be ensured without restricting or limiting Article 129 जो Supreme Court को contempt की powers देता है. तो लोग ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर है. तो यहाँ पे बेसिकली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 19, दैट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एंड इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है दैट दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अप्लाइड बाय जुडिशरी इन आर्बिट्री मैनर. मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको कभी भी वेग फॉर्म में अप्लाई कर देता है, और ऐसा जस्टिस कृष्णा अय्यर का भी कहना है, हु सेज दैट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज वेरी मच वेग इन नेचर एंड हैज अ वॉन्डरिंग ज्यूरिसडिक्शन. मतलब इसमें जो टर्म्स हैं स्पेशली लाइक स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट, ये बहुत ही इल डिफाइंड है, वेग है, एंड दे आर ओपन टू मेनी इंटरप्रिटेशंस, जिसके कारण जो कंटेम्प्ट पावर्स हैं जुडिशरी के पास वो एनहांस हो जाती हैं, और साथ ही में सिविल लिबर्टीज कर्ब हो जाती हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म हियर इज दैट दिस contempt of court is not in consonance with the constitutional scheme of India. कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो है वो पीपल को सॉवरन बोलता है, तो लोगों को हमारे देश में सॉवरन बोला गया है, एंड दे हैव ऑल राइट्स टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन फ्री एंड ओपन मैनर, वेयर एज
contempt of court restricts this power of people who are actually sovereign अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सॉवरेन है अगर उसी को आप रेस्ट्रिक्ट कर देंगे देन इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बेसिकली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म इज द एनफोर्समेंट ऑफ साइलेंस बाय द जुडिशरी। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली साइलेंस को एनफोर्स करता है और ओपन क्रिटिसिज्म्स हेल्दी डिबेट्स को एनकरेज नहीं करता है। दिस कॉजेस सस्पिशन अमंग द पब्लिक एंड इवेंचुअली इट आल्सो कॉजेस रिसेंटमेंट। तो ये जो लॉ है ये काफी ड्रैकोनियन है और इसके कोई सेफगार्ड्स नहीं है, बिकॉज अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के एंड से आई है तो उस पे आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, और अगर ये हाई कोर्ट के एंड से आई है तो उसमें भी अपील करने के चांसेस बहुत ही लिमिटेड रहते हैं या रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। सो दीज वर द रेलेवेंस एंड लिमिटेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नाउ लेट अस कम ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, दैट इज द वे फॉरवर्ड। सो इफ वी टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड देन द फर्स्ट पॉइंट वुड बी टू प्रायोरिटाइज आर्टिकल 19(1)(a) ओवर आर्टिकल 129। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है ओवर द पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट विच आर एट प्रेजेंट एंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड वे फॉरवर्ड वुड बी कि जुडिशरी को ये इंश्योर करने की जरूरत है दैट दीज प्रोविजंस ऑफ कंटेम्प्ट आर यूज्ड स्पैरिंगली, मतलब उनका फ्रीक्वेंट यूज ना हो। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें और पिछले ही कुछ सालों में देखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। लाइक मार्कंडे काटजू के केस में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीडिया में काफी टाइम तक रहा था, जस्टिस CS कर्नन के केस में काफी टाइम तक रहा था। देन व्हेन 4 जजेस केम आउट टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द फंक्शनिंग एंड द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब भी कंटेम्प्ट काफी टाइम तक न्यूज में रहा था। अभी स्वरा भास्कर के केस में भी कंटेम्प्ट न्यूज में है एंड प्रशांत भूषण के केस में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज में है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इतना फ्रीक्वेंट यूज नहीं होना चाहिए एंड इट शुड बी स्पैरिंगली यूज्ड। अगर हम इंग्लैंड की बात करें जहां से हमने ये लॉ को बोरो करा है बेसिकली, तो इंग्लैंड में पिछले 80 सालों में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, एंड ऑल्सो दे हैव removed or done away with the scandalization of the court or the judiciary from their contempt law। मतलब उनका जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है उसमें स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट या जुडिशरी को इंक्लूड अब नहीं किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ भी काफी लोगों ने प्रपोज करा है एंड इनफैक्ट इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन फ्यू ऑफ द जजमेंट्स। अगर आप शिव शंकर केस देखेंगे ऑफ 1994 देन देयर वाज क्लियर मेंशन कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वहां पे यूज किया जाए जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को हैम्पर किया जा रहा है या इम्पेयर किया जा रहा है। मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्लियरली फंक्शन कर रहा है तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स वहां पे इनिशिएट नहीं होनी चाहिए। सो इट हैज बीन एडवाइज्ड कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 3 चीजें मेंशन्ड हैं अंडर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट, दैट इज स्कैंडलाइजेशन, इंटरफेरेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें से सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन वैलिड होना चाहिए, रेस्ट टू कैन बी डन अवे विद बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेग इन नेचर। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन सफर नहीं कर रहा है या कोर्ट की फंक्शनिंग हैम्पर नहीं हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स स्पेशली क्रिमिनल कंटेम्प्ट शुड नॉट बी इनिशिएटेड एंड द डेफिनेशन ऑफ फेयर एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शुड फर्दर बी एनहांस्ड और एनलार्ज्ड, ताकि और ज्यादा ओपिनियंस लोग फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें। कोर्ट or any institution should not be afraid of criticism। We have to understand here कि criticism से किसी भी institution की dignity ना enhance होती है ना उसकी dignity damage होती है। It totally depends upon the functioning of that institution। अगर कोई institution function ही नहीं कर रहा है in a proper manner then obviously it cannot ensure its dignity and also it cannot ensure the trust of public in it। यहीं पे अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो इंडियन जुडिशरी में एज ऑफ नाउ देयर आर मोर देन 3 करोड़ पेंडिंग केसेस। सुप्रीम कोर्ट 2018 में सिर्फ 190 डेज फंक्शन किया था। सो ऑल दीज थिंग्स clearly show that how inefficient Indian judiciary is। Indian judiciary अपने potential output से बहुत ही नीचे function कर रही है and if someone criticizes it then you cannot initiate contempt of court proceedings against that individual। because यहाँ पे सिर्फ प्रशांत भूषण नहीं है जिन्होंने
क्रिटिसिज्म किया कोर्ट का. दिस क्रिटिसिज्म वाज डूइंग राउंड सिंस अ लॉन्ग टाइम. बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रोल को इन दिस रीसेंट पास्ट क्रिटिसाइज किया है. जैसे कि अगर हम जजमेंट्स भी देखें तो चाहे वो रफेल की जजमेंट हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, जम्मू कश्मीर की इंटरनेट राइट्स का इशू हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, अयोध्या वर्डिक्ट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात अगर हम करें, एनआरसी की बात करें, तो ये सारे केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन सब केसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं बाय द लीगल luminaries and also by the people of India. So criticism is already out there in public domain and you cannot initiate contempt proceedings against each and every individual because that is not practically possible. So a formula should be devised so as to rationally apply contempt of court, especially criminal contempt. जैसे केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि सिडिशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक एक स्पीच वायलेंस को इंसाइट ना करे. सो दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मूला कैन आल्सो बी डिवाइज्ड एंड अप्लाइड टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को तब तक नहीं माना जाएगा या प्रोसीडिंग्स तब तक स्टार्ट नहीं होंगी जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैम्पर नहीं होता है. दिस विल ब्रिंग सम रैशनैलिटी to this contempt of court and will facilitate India to adopt some of the best practices which are already running across the world. जैसे कि हमने इंग्लैंड में देखा, there is a strong need कि एक broad based committee बने जिसमें representation हो of the judiciary, civil society members and also of the politicians कि एक convergence create हो सके so as to make Contempt of Court Act 1971 more rational, suiting present and contemporary needs. So this Act of 1971 has to be amended again now so as to make it more rational. So this was all that we had to discuss in this session of Cracked Nets. If you think that we have cracked it right, then please let us know in the comment section below. Also like and share this video if you have learned anything out of it. Subscribe to our channel if you haven't done it yet. Thank you for your patient listening.